Yes, so I think we were calculating the soil pressure, right? So we have seen check for sliding, check for overturning. So now we will see check for soil pressure. So we'll find out P max and P minimum. So this is given by the equation where X bar is this and E is equal to this. So we have seen how to find out these values in cantilever retaining wall. So P max is 159 and P minimum is 29.34. Okay. So now after this, the next step is design of the stem. So now let us see how to design the stem. So here you can see we have already calculated the negative bending moment and the positive bending moment for the stem. So which is 47 and 35. And what is the depth of the stem? 300 overall depth. And what is the effective depth? We have considered effective cover as 50. So it becomes 250. And consider 1 meter strip for design. So now we will find out first the reinforcement on the inner face of the stem, that is at the counter force. ठीक है, so we have two bending moments, correct? एक तो positive bending moment और एक negative. So दोनों bending moment के लिए we'll have to find out the steel. तो उसका position मैंने थियरी में बताया था in the diagram if you remember. ठीक है, तो एक टेंशन फेस किधर था? अवे फ्रॉम द स्टेम और एक टुवर्ड्स द स्टेम एट द काउंटर फोर्स. ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट ऑन द इनर फेस ऑफ द स्टेम मतलब क्या? एट द काउंटर फोर्स में फाइंड आउट कर रहा हूँ. ठीक है, तो एट द काउंटर फोर्स स्टील कितना आएगा? दैट आई एम फाइंडिंग आउट. सो मोमेंट फॉर दैट इज 47. ठीक है, सो 47.25. सो AST रिक्वायर्ड द सेम इक्वेशन 0.5 FC के BD अपॉन F5. ठीक है, so with the help of that you will find out AST required, so which is coming out to be 548. And then we will check with AST minimum also. So whenever we find out AST required, always check with AST minimum. Okay, because if AST required is less and AST minimum is more, then you will have to consider AST minimum and then find out the spacing. Okay, so in this case AST required is more than AST minimum, so no problem, we will consider AST required only. So now let us assume a suitable diameter of the bar. Since the area is less, so we will assume 12 mm diameter bar and we will find out the spacing. So the spacing is coming out to be 206. So therefore, let us provide 12 torr at 200 mm center to center as horizontal reinforcement on the inner face of the stem, that is at the counter force. ठीक है, at the counter force steel कितना find out किया हमने? 12 torr at 200 center to center as horizontal reinforcement. ठीक है, सो नाउ कैन एनीवन टेल मी ये इसमें मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कौन से डायरेक्शन में रहेगा? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले. ठीक है, वी आर डिजाइनिंग काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल, तो इसमें मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का प्लेसमेंट कैसा रहेगा? एनीवन? Main steel would be vertical and distribution steel would be horizontal. Horizontal. Okay, Ojas is saying main steel will be vertical and distribution. What about others? मेन स्टील हॉरिजॉन्टल होगा इसमें. मेन स्टील हॉरिजॉन्टल होगा. व्हाई? सर मेन स्टील हॉरिजॉन्टल. टेंशन जोन. टेंशन जोन. यस, ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस एज कंपेयर टू कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल एंड काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल. ठीक है, तो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल में क्या हो जाएगा? तुम्हारे दो सपोर्ट्स आ जाएंगे काउंटर फोर्ट, तो उसके बीच में का स्लैब सिर्फ तुमको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है. तो उसमें का जो बीच में का स्लैब का जो बिहेवियर है वो बेंड कैसे होगा? हॉरिजॉन्टली बेंड होगा. तो उसमें मेन स्टील कैसे प्रोवाइड करना पड़ेगा? अपने को हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करना पड़ेगा. लेकिन कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में क्या होता था? काउंटर फोर्ट्स बीच में सपोर्ट्स तो नहीं थे, तो वो तो एक लंबा वॉल था, सिर्फ कैंटिलीवर बिहेवियर था, तो वो बेंड होता था वर्टिकली, तो उसमें मेन रीइंफोर्समेंट वर्टिकल रहता था और डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल. अभी समझ में आया? यस और नो? Yes sir. ओके, ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस. सो यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो मेन स्टील जो प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑन द इनर फेस ऑफ द स्टेम.
So therefore provide 12 torr at 200 as horizontal reinforcement on the inner face of the stem. So once you find out the steel, once you provide the spacing, then find out AST provided also. So AST provided is coming out to be this. So now let us find out reinforcement on the outer face of the stem. Outer face of the stem मतलब जो sagging portion जो था steel, वो साइड टेंशन जोन में आएगा, तो वो है आउटर फेस ऑफ द स्टेम. ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, आउटर फेस में सैगिंग है, इनर फेस में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. सो एमयू कितना हो जाएगा बिटवीन द काउंटर फोर्स. इसका मतलब क्या है, ये बिटवीन द काउंटर फोर्स. एक तो एट द काउंटर फोर्ट है और दूसरा बिटवीन द काउंटर फोर्ट. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर. पहले स्टील किधर फाइंड आउट करेंगे, एट द काउंटर फोर्ट. ठीक है, सो लेट मी जस्ट शो यू. ठीक है, वो ठीक है. सो कैन यू सी हियर इन द प्लान, ये है एट द काउंटर फोर्ट. ये जो स्टील है ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए स्टील आएगा. कहाँ पे है ये स्टील, एट द काउंटर फोर्ट, और ये स्टील किधर है, बिटवीन द काउंटर फोर्ट्स. सो दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट. तो इसको मैं बोलूंगा इनर फेस ऑफ द स्टेम. ये मेरा स्टेम है ना, तो इसको मैं बोलूंगा इनर फेस ऑफ द स्टेम. ठीक है, ये जो फेस है मेरा, ये इनर फेस है ऑफ द स्टेम, और ये फेस कौन सा है, आउटर फेस. अभी समझ में आया सबको? सो यू कैन से दिस एज रीइंफोर्समेंट ऑन द इनर फेस ऑफ द स्टेम, ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर रीइंफोर्समेंट एट द काउंटर फोर्ट. इसको मैं क्या बोलूंगा, रीइंफोर्समेंट ऑन द आउटर फेस ऑफ द स्टेम और रीइंफोर्समेंट बिटवीन द काउंटर फोर्ट. ठीक है, सो यू कैन से इन आइदर वे. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर. वो एक बार बेंडिंग मूवमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव ये देखो ना, ये नेगेटिव है, ये WL²/12 है. तो यहाँ पे जो भी रीइंफोर्समेंट फाइंड आउट करोगे एट द काउंटर फोर्ट, तो बेंडिंग मोमेंट कौन सा कंसीडर करोगे, WL²/12. और बिटवीन द काउंटर फोर्ट जब भी रीइंफोर्समेंट फाइंड आउट करोगे, तो बेंडिंग मोमेंट कौन सा कंसीडर करोगे, WL²/16, मतलब पॉजिटिव. सर न्यूमेरिकल में कैसे फाइंड किया वो एक बार दिखा दो. अच्छा, न्यूमेरिकल. ओके, ठीक है. तो सेम वे इसका जैसे बिहेवियर है, जब भी हम लोग हिल स्लैब डिजाइन करेंगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा, देखो बिटवीन द काउंटर फोर्ट, बॉटम में टेंशन है और यहाँ पे एट द काउंटर फोर्ट. ठीक है, तो हिल स्लैब जब भी डिजाइन करेंगे तो उसमें भी दो साइड रीइंफोर्समेंट निकालना पड़ेगा, एक तो बॉटम में और एक टॉप में. ओके, so now let us get back to the numerical. Yes, so now what we are doing, we are designing the stem. तो ये हमने पहले ही कैलकुलेट किया है. नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना था, 47. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया था नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट फैक्टर्ड 47, पॉजिटिव WL²/16 35. ठीक है, सेम वैल्यूज आई हैव मेंशनड हियर, 47 एंड 35. तो 47 कहाँ पे है, एट द काउंटर फोर्ट है. तो यहाँ पे देखो इनर फेस ऑफ द स्टेम भी इसको बोल सकते हो, या फिर काउंटर फोर्ट भी बोल सकते हो. ठीक है, सो विच एवर यू फील कन्वीनियंट. एंड देन reinforcement on the outer face of the stem, मतलब between the counter forts. करेक्ट. तो उसके लिए मोमेंट कितना है, 35. अगेन यू विल फाइंड आउट AST रिक्वायर्ड, सेम इक्वेशन 0.5 FC के BD/FY. ओके, yes, so AST required, and then check with AST minimum. So here AST required is more than AST minimum, so no problem. And then again the steel is less, so let us assume 12 mm diameter bar, and find out the spacing is coming out to be 278. So therefore let us provide 12 torr at 275 as horizontal reinforcement on the outer face of the stem. Is this clear? अभी distribution steel भी provide करना पड़ेगा. distribution steel कौन से direction में रहेगा, vertical direction में. So how much you will provide distribution steel, anyone? Yes, distribution steel vertical direction में how much you will provide?
Yes, am I audible? So 0.12 BD. Exactly, AST मिनिमम प्रोवाइड करेंगे ना, मिनिमम स्टील डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट, तो AST मिनिमम हमने फाइंड आउट किया है। ये AST मिनिमम कैसे फाइंड आउट किया मैंने? 0.12% BD। करेक्ट, सो let us provide distribution steel as AST minimum. So provide minimum reinforcement. Minimum reinforcement कितना है ये? That is 10 torr at 200 as vertical reinforcement on both the faces. Okay. तो जो distribution steel है, so let us provide 10 torr at 200. ठीक है, तो ये एरिया लेके 10 diameter consider करके you can find out the spacing. So you will get this spacing 10 torr at 200. Is this clear everyone? Design of the stem clear है? Yes, sir. So now let us move on to the design of the heel slab. Yes. सर अगर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेसिंग 275 आया तो डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेसिंग 275 नहीं आया, ये तो अगर तुम्हारा आया तो रीइंफोर्समेंट अगर ऐसा बिटवीन द वाइस वर्सा काउंटर। हुआ तो अच्छा, सेम आया तो यू आर आस्किंग मी? नो सर, डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेसिंग ज्यादा आया एज कंपेयर टू मेन स्टील। मेन स्टील नहीं आएगा ना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग एरिया देखो ये 360 है, ये ज़्यादा है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का डायमीटर पे डिपेंड करेगा। सर तुमने दूसरे केस में लाइक स्टेयरकेस लाइक स्टेयर केस में स्पेसिंग ज़्यादा आएगा। हाँ, तो स्पेसिंग कर ज़्यादा, सकते हैं क्या? हाँ डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेसिंग ज़्यादा आएगा तो नो प्रॉब्लम। स्पेसिंग ज़्यादा आया मतलब क्या, स्टील कम है ना तुम्हारा। ओके हाँ, स्पेसिंग कम है, डायमीटर सेम है दोनों का और स्पेसिंग ज़्यादा है तो मतलब स्टील कम है। So you can provide more spacing in distribution steel, no problem. ओके सर, थैंक यू। So now let us move on to the next step, that is design of the heel slab. ठीक है, so design of the heel slab will remain the same जैसे पहले किया था. So first we will find out the net pressure acting on the heel slab. तो net pressure find out करने के लिए vertical pressure पहले find out किया था. So this is coming out to be at this point 30 and at A it is 158. ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट द डाउनवर्ड प्रेशर नाउ. ये तो ऑलरेडी है अपने पास, अपवर्ड सॉइल प्रेशर. सो डाउनवर्ड प्रेशर कितना है? सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब एंड देन सॉइल वेट. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी दिस 133. तो अभी सी और डी पे फाइंड आउट करना है. सो नेट प्रेशर एट सी, तो ये डाउनवर्ड कितना है 133 और अपवर्ड कितना है सी पे, फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय इंटरपोलेशन. ठीक है, सो व्हेन यू फाइंड आउट बाय इंटरपोलेशन, लास्ट टाइम बताया था, सो यू विल गेट हियर 105. So 133 minus 105, this is 27. तो नेट प्रेशर एट सी का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है. करेक्ट. और डी पे कितना है? डायरेक्टली मिल जाएगा, 30 है अपवर्ड और डाउनवर्ड है 133. सो 102 डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है. सो डी पे है 102, यहाँ पे देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सी पे है 27 डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो नाउ वी विल फाइंड आउट what we will find out, considering 1 meter wide strip at the end of the heel slab for calculation. Again we will find out the pressure at the end of the heel slab. ठीक है, तो ये तो मिल गया प्रेशर. ठीक है, पर मीटर से अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 मीटर से तो क्या मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ यूडीएल, किलो न्यूटन पर मीटर. 102 pressure at the end of the heel slab is 102 kilonewton per meter. So now we will find out the negative bending moment and the positive bending moment. ठीक है, this I am talking about the heel slab जो मैंने डायग्राम बताया था. तो heel slab भी कैसे बिहेव करेगा? एज अ कंटिन्यूअस स्लैब बिहेव करेगा. So again it will have positive moment and negative moment at the support. So negative moment at the support is WL square by 12, where W is what? 102, and maximum positive bending moment कितना है? WL square by 16. So this is coming out to be 57. Is this clear everyone? ये बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट किया, समझ में आया? Yes, sir. ओके,
सो नाउ अगेन सेम जैसे पहले स्टेम को रीइंफोर्समेंट कैसे डिजाइन किए थे, सेम वी विल फाइंड आउट रीइंफोर्समेंट एट द टॉप ऑफ द हिल स्लैब, दैट इज एट द काउंटर फोर्ट। ठीक है, एक मैंने बताया था टॉप पे फाइंड आउट करेंगे स्टील, और एक बॉटम में किधर है, बिटवीन द काउंटर फोर्ट, और टॉप में किधर है, एट द काउंटर फोर्ट्स। सो रीइंफोर्समेंट एट द टॉप ऑफ द हिल स्लैब दैट इज एट द काउंटर फोर्ट्स इज गिवन बाय, तो ये देखो काउंटर फोर्ट पे कितना है 77, तो 77 मोमेंट उसको फैक्टर नहीं किया था हमने, तो अभी फैक्टर कर देंगे। सो दिस इज 115 एंड व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द बेस स्लैब, ओवरऑल डेप्थ कितना है 300, तो इफेक्टिव डेप्थ के लिए इफेक्टिव कवर 50 कंसिडर किया है, सो इफेक्टिव डेप्थ इज 250। देन वी विल फाइंड आउट AST रिक्वायर्ड, AST रिक्वायर्ड सेम इक्वेशन 0.5 FCK BD upon FY, so you will get the value of AST required. Next again we will check with AST minimum, तो whichever is greater we will consider। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरिया ज्यादा है 1457 है, so let us select a higher diameter, so using 16 mm diameter bar, spacing मैंने डायरेक्टली लिखा है, spacing you know how to find out the spacing, so this is coming out to be 137, so let us provide 16 TOR at 125 mm center to center। okay, so now we got the reinforcement at the counter fort, अभी किधर find out करेंगे, at the bottom of the hill slab, मतलब between the counter fort। so now reinforcement at the bottom of the hill slab that is between the counter fort, ठीक है, ये below नहीं है, ये between the counter fort है। now mu कितना है यहाँ पे 57, उसको फैक्टर किया तो 86, अगेन विल फाइंड आउट AST रिक्वायर्ड, AST मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे भी AST रिक्वायर्ड 1000 है, सो लेट अस सिलेक्ट 16 mm डायमीटर बार, so spacing is 190.93, so let us provide 16 TOR at 175 mm center to center। so now we got the reinforcement in the hill slab at the support also and at the mid span also। ठीक है, so again इसके लिए भी distribution steel provide करना पड़ेगा, so let us provide 10 TOR at 200 distribution steel on both the faces of the hill slab। is this clear everyone, design of the hill slab समझ में आया? ये जो 10 TOR आपने अज्यूम किया है क्या, ये एज्यूम भी कर सकते हो या फिर फाइंड आउट भी कर सकते हो, 360 लेके फाइंड आउट करो। अच्छा चलो बताओ मुझे कितना आ रहा है, 360 लो, 10 TOR का डायमीटर एज्यूम करो और बताओ मुझे स्पेसिंग कितना आ रहा है। Yes, do it quickly। उतना यार, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे स्पेसिंग, इक्वेशन किसी को पता है? π/4 किसको मिला आंसर? 218 आ रहा है ना, रोहित इज सेइंग 218, देवंश इज गेटिंग 218। अभी समझ में आया कैसे मिला वो? यस, एम आई ऑडिबल एवरीवन? हाँ सर 218.16 आया। हाँ, तो 218 आ रहा है, तो मैंने कितना कंसिडर किया 200। ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट करना है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। इज इट क्लियर नाउ? yes yes sir, okay, ठीक है, so this is coming out to be 218, so hence I am providing 10 TOR at 200 as distribution steel on both the faces of the hill slab। now let us move on। ठीक है, अभी क्या बचा है डिजाइन में, anyone? we have designed the stem, we have designed the hill slab, what is remaining now? तो हाँ, yes, what is remaining now? शेयर की, shear key, apart from that? फोल्ड, हाँ, टो बाकी है ना, टो स्लैब बाकी है ना, अभी तो सिर्फ हमने हिल स्लैब ही डिजाइन किया है। then we will design the toe slab and then we will design the counterfort also, last में we will provide the shear key। okay, so the next step is
डिजाइन ऑफ द टो स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन नहीं दिया है, सो आई एम अज्यूमिंग 1 मीटर डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। ओके, सो टो स्लैब पे अपवर्ड प्रेशर तो ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड सॉइल प्रेशर, सो डाउनवर्ड प्रेशर वी विल फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डाउनवर्ड प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब और वेट ऑफ द सॉइल। ठीक है, वेट ऑफ द सॉइल का ये देखो डेप्थ इतना ही है 700 mm, सो टोटल लोड इज दिस। ओके, so then we will find out net pressure at A। ठीक है, so let us say this is A and B, तो net pressure at A कितना है? अभी देखो डाउनवर्ड कम है और अपवर्ड ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट प्रेशर किधर रहेगा? अपवर्ड रहेगा। सो 115 मैंने अपवर्ड से माइनस किया है, -20 इज 95, और रिजल्टेंट प्रेशर एट ए अपवर्ड 158 -20 इज 138। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये अपवर्ड प्रेशर का डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपवर्ड आएगा ऐसा, तो रिजल्टेंट, so now what we will do, we will find out the resultant force। okay, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे पहले फाइंड आउट किया था, एनीवन रिमेंबर्स द इक्वेशन टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट? yes, how will you find out this resultant? A plus B by 2 EH। ओके, ठीक है, सो ए और बी पे प्रेशर मिल गया, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे ए प्लस बी अपॉन 2 2A इंटू plus एच। B, हाँ, ओके, सो वी गॉट द रिजल्टेंट एंड देन वी विल फाइंड आउट एक्स बार। ठीक है, एक्स बार कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2A plus B upon A plus B into L by 3। ओके, इज दैट करेक्ट अदर्स? A plus 2B Sir, plus A A plus plus 2B 2B upon A plus B. into H। ए प्लस 2b अपॉन, A plus B. ओके, कैंटिलीवर में किया था ना? 2A हाँ plus सर। B upon A plus B into L by 3। ओके, ठीक है, वेर ए एंड बी इज व्हाट? Forces, A is 95.31. हाँ, तो ए इज द लेसर मैग्नीट्यूड, राइट? ठीक है, तो ए इज द लेसर वैल्यू एंड बी इज द हायर वैल्यू, तो वो ध्यान में रख। सो नाउ वी विल फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट which is nothing but r into x bar and then the factored bending moment, and then we will find out। ठीक है, अभी बेस स्लैब है, ये टो स्लैब है, टो स्लैब का डेप्थ कितना है 300 और इफेक्टिव डेप्थ कितना है 250, एंड देन वी विल फाइंड आउट द AST रिक्वायर्ड। ठीक है, सो नाउ कैन एनीवन टेल मी कि ये टो स्लैब और हिल स्लैब में डिफरेंस क्या है डिजाइन में? अच्छा, टेल मी के कैंटिलीवर में और काउंटर फोर्ट में डिजाइन ऑफ द हिल स्लैब में कुछ डिफरेंस है? Continuous counter photon. काउंटर फोर्ट में कंटिन्यूस है। ठीक है, सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस्ड दिस। ठीक है, डिजाइन ऑफ द हिल स्लैब में इन काउंटर फोर्ट इट इज डिफरेंट। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? हियर वी कैलकुलेटेड द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एंड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और टो स्लैब में हाउ वी आर डिजाइनिंग? टो स्लैब में हैव वी कैलकुलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट? yes or no? yes, am I audible?
नो, Yes. है ना, इसमें टो स्लैब में फाइंड आउट नहीं किया. व्हाई? टू स्लैब नहीं में से इट अगेन. ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ठीक है. सो इट इज बेसिकली based on the behavior of the toe slab. ठीक है, तो ये जो toe slab जो डिजाइन है, दिस इज सेम what we have done in cantilever retaining wall. ठीक है, ये जो toe slab का डिजाइन हम कैसे कर रहे हैं, सेम जैसे कैंटिलीवर में किया था. रिजल्टेंट निकालो, नेट प्रेशर निकालो, एक्स बार निकालो, मोमेंट फाइंड आउट करो एंड स्टील फाइंड आउट करो. वाई? बिकॉज इसका बिहेवियर सेम है ना जैसे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल. इसमें तुम्हारे काउंटर फोर्स थोड़ी है. आर यू गेटिंग? यहाँ पे तो सिर्फ ये इतना ही पोर्शन है ना, ये पहले जैसी है. तो ये जो डिजाइन ऑफ द टो है, दिस इज सेम एज व्हाट वी हैव डन इन कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल. नाउ यू अंडरस्टूड? सो दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, तो काउंटर फोर्ट में हिल स्लैब डिजाइन में डिफरेंट है, स्टेम तो डिफरेंट ही है, लेकिन टो स्लैब इज द सेम एज दैट ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल. ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में इसके लिए लिखा है, सिंस देयर इज नो नेगेटिव एंड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट वी आर फाइंडिंग आउट आर एक्स बार एंड मोमेंट. इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है, तो द आंसर वाज इन फ्रंट ऑफ यू बट स्टिल nobody realized. Okay, so now we will find out the steel कितना आ रहा है अभी देखो. Steel is so now let us select a higher diameter. ठीक है, तो steel required कितना है, ज्यादा आ रहा है ना, 2328 है. So let us select a higher diameter and find out the spacing. So let us select 20 mm diameter bar. So spacing is coming out to be 134. So therefore let us provide 20 torr at 125 center to center. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देखो, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मैंने इधर बताया है 10 torr at 200. So therefore also provide 10 torr at 200 in both the directions at the top of the toe slab. ठीक है, तो टॉप में भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड किया. So that was the design of the toe slab. Is this clear everyone? Design of the heel slab and design of the toe slab we are done. Now what is remaining? Design of the counterfort is remaining. Okay, so once we complete the design of the counterfort, then we will go for the reinforcement detailing. Okay, so shall we start with the design of the counterfort? Or if you have any doubt in this so far, what we have done, you can ask me. So after the lecture, share this video. Yes, I will share this on Moodle account, so you can refer this. Okay, so once I will share this, okay, so first solve on your own, then only you will understand it. Okay, so I have given one assignment problem. So take that question and start solving it on your own. Okay, if you have any doubt, you can contact me. So shall we start with the design of the counterfort now? Yes, sir. Okay, so let us move on to the next step, that is design of the
counterfort. ठीक है, so now let us see कि counterfort कैसे डिजाइन करेंगे. So consider this figure. So these are the dimensions which is given in the question. So this is the counterfort. So the reinforcement in the counterfort will be provided like this, which I have shown here, counterfort reinforcement. So now let us find out the effective depth of the counterfort. So to find out that, let us consider at this junction. Okay, so depth from at this corner perpendicular to the counterfort. And let us say that this is the effective depth of the counterfort. Okay, since the depth is decreasing ना, इसका depth constant नहीं है, varying depth है. ठीक है, statement मैंने बताया था, it acts as an inverted T beam of varying depth. So now, so therefore we are considering at this junction perpendicular to the counterfort. So let us say DC is nothing but the effective depth of the counterfort, or width of the counterfort B कितना है 500, which is given in the question. So let us consider this as the angle beta. So even this will become your angle beta. So now beta is nothing but tan inverse. What is tan theta is opposite upon adjacent. करेक्ट. तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल कितना है 7000. ठीक है, तो ऑपोजिट ये इसमें से मैंने माइनस कितना किया है, ये वाला 300. ठीक है, ये 300 मैंने माइनस किया तो ऑपोजिट साइड मिल गया इतना, और ये एडजेसेंट कितना है, टोटल हाइट है. सो बीटा इज 16.32. इज दिस क्लियर एवरीवन? So now let us find out cos beta. So cos beta is nothing but DC upon this. ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ अभी cos beta. तो cos beta is what? Adjacent upon hypotenuse. So DC is adjacent and this is the hypotenuse. So now you will get the value of DC. ठीक है, तो basically what we are finding, we are trying to find out this value. So this is how we are finding the value of DC. Now let us find out the pressure on the counterfort. ठीक है, so consider this side view और द राइट हैंड साइड व्यू. ठीक है, ये तुम्हारा राइट हैंड साइड व्यू है, तो ये तुम्हारा बेस स्लैब है, ये काउंटरफोर्ट है, और यहाँ पे तुमको विड्थ दिखेगा काउंटरफोर्ट का विड्थ. काउंटरफोर्ट का विड्थ कितना है 500 mm. ओके, सो नाउ कंसिडर द प्रेशर फॉर दिस. सो कंसिडर द प्रेशर डायग्राम फॉर दिस. सो बेस पे कितना है 42. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट प्रेशर ऑन वन काउंटरफोर्ट. ठीक है, तो प्रेशर एक्टिंग ऑन वन काउंटरफोर्ट इज गिवन बाय दिस. ठीक है, तो दोनों साइड से आएगा ना, इधर से भी हाफ आएगा और इधर से भी, तो हाफ इंटू दिस 42 बेस इंटू हाइट इंटू ये 3/2 और यहाँ से 3/2. सो दिस इज द प्रेशर एक्टिंग ऑन वन काउंटरफोर्ट. ठीक है, तो like this we have considered half from this side and half from this side. Okay, so this is coming out to be 441. So now moment acting on counterfort is nothing but, यहाँ पे देखो moment acting is this pressure into h/3 or this load into this height, which is nothing but 1029. Now we will find out the factored moment. So once you get the moment, let us find out the factored moment. So we got the factored moment also. Now we will check for the depth of the counterfort. Okay, so we will check for the depth of the counterfort. So mu is this, B is this. So 0.138 FCK BD square. So depth is coming out to be 1057, which is less than the depth which we have provided or calculated.
So hence it is safe. Once you check for the depth of the counterfort, then you can find out the reinforcement. So now AST required is coming out to be 2013. Okay. So now let us select a suitable diameter. तो जो काउंटर फोर्ट पे जो स्टील प्रोवाइड करेंगे, सो दैट फॉर दैट विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ बार्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बार्स सिंस इट एक्ट्स लाइक अ बीम. So using 25 mm diameter bars, so number of bars coming out to be is 4. So let us provide 5 bars of 25 mm diameter on the counter fort. Is this clear everyone so far? Yes. Okay. ठीक है, तो अभी सिर्फ we have got the steel on the counter fort. Now one more thing we have to find out, that is connection of the stem and the counter fort. ठीक है, तो अभी काउंटर फोर्ट ऐसा है तो उसमें स्टील प्रोवाइड किया है, लेकिन उसके कनेक्शन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो काउंटर फोर्ट है और जो तुम्हारा स्टेम है वो कनेक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि सॉइल प्रेशर से वो क्या हो जाएगा, दैट विल लीव द स्टेम. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जो तुम्हारा काउंटर फोर्ट है और जो स्टेम है उसमें कनेक्शन होना चाहिए ना कुछ तो, अदरवाइज जो सॉइल प्रेशर है उसको क्या करेगा, सेपरेट कर देगा. काउंटर फोर्ट और स्टेम को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा प्रेशर से. इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes. हाँ. So let us understand. Tension is exerted on the counter fort due to the lateral soil pressure. ठीक है, soil pressure कैसे आ रहा है, laterally आ रहा है, acting on the stem as shown in the diagram. ठीक है, so as we move from bottom to top, the requirement of the reinforcement decreases because lateral pressure and tension decreases. Is this clear everyone? So as we move towards the top, the requirement of the reinforcement will also decrease because जो तुम्हारा lateral earth pressure है वो क्या होता है, decrease होते जाता है जैसे height increase होती है. Okay, I think last 1 minute is remaining in this session. So this connection of the stem and the counter fort we will continue in the next lecture. I think after the break we have one lecture of DDRCS. Am I correct? So can you share this PDF in WhatsApp group? WhatsApp group I will share in Moodle account, because in WhatsApp that is the mentor group na. So In A1 batch, means in A1 batch, A2 batch. A division. Okay. Yes, sir. Actually that group is not meant to share the notes, so that is the reason I will upload this on Moodle account. Okay, so right after this lecture I will upload, don't worry.